السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 93,337 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں اب تک کورونا وائرس کی کل تعداد 53,08,014 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,247 لوگ فوت بھی ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 95,880 لوگ ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے ہفتے کی صبح 2 بڑی کارروائیوں کو انجام دیا ہے۔ NIA نے مغربی بنگال کے مرشید آباد میں اور کیرالہ کے ایرناکولم میں بہت سے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے۔ اس وقت پاکستان کی دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے 9 دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ چھاپے ماری میں NIA نے مغربی بنگال سے 6 اور کیرالہ سے 3 دہشت گردوں کو حراست میں لیا ہے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ڈیجیٹل ڈیوائسز، دستاویزات، جہادی بکس، دیسی ہتھیار، دھماکہ کرنے والے آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی امریکیوں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کو حکومت ہند کی ایجنسیوں اور ان اداروں کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہیے جو مذہبی استحصال میں ملوث ہیں۔ انڈین امریکن اور امریکہ میں قائم شہری حقوق کی تنظیموں اور جہدکاروں کے وسیع تر مخلوط ہندوستان میں نسل کشی کو روکنے والا مخلوط CSGI نے 14 امریکی سینیٹرز کی جانب سے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو تحریر کردہ مکتوب کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں زور دیا گیا کہ امریکی قانون حکومت کو وفاقی کمیشن کی ایسی سفارشات پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے جن میں بعض ملکوں کو تشویش والے ممالک نامزد کیے جاتے ہیں۔ امریکی حکومت کی سرکاری اصطلاح ہے کہ کسی معاملے میں خاطی ملک کے لیے وہ مخصوص فکر مندی والے ممالک CPC کا استعمال کرتا ہے۔ ایسے ممالک دنیا میں مذہبی آزادی کے معاملے میں بدترین خاطی ہوتے ہیں۔ یہ پیغام عام ہو کہ میڈیا کسی سماج کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ سدرشن چینل کے نوکر شاہی جہاد کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ میڈیا کی آزادی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، مگر چینل کو بھی متنبہ کیا کہ وہ اس طرح پورے سماج کو بدنام نہیں کر سکتا۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ قوم کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی سماج کے خلاف نہیں۔ بینچ کے دیگر ججوں نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ سدرشن TV کے پروگرام نوکر شاہی جہاد میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مذموم کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے چوتھے دن اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ میڈیا کو یہ پیغام جاننا چاہیے کہ وہ یوں کسی پورے ایک سماج کو بدنام نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کا کسی طرح کے سینسرشپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زرعی اصلاحات کے نام پر مودی حکومت کے ذریعے پیش کیے گئے مسودہ قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اکالی دل کی رکن پارلیمنٹ ہرسمرت کور کا کابینہ سے استعفیٰ نہ صرف BJP کے لیے پنجاب میں پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے بلکہ ہریانہ میں بھی یہ اس کی حکومت کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ایک طرف جہاں BJP کو اپنا سب سے قدیم اتحادی اکالی دل کھو دینے کا خطرہ درپیش ہے، وہیں دوسری طرف ہریانہ میں نائب وزیر اعلیٰ اور جن نائک جنتا پارٹی کے سربراہ دشنت چوٹالہ پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اکالی دل کی طرح سخت رویہ اختیار کریں۔ واضح ہے کہ جن نائک جنتا پارٹی ہریانہ میں BJP کی اتحادی ہے اور اسی کے 10 اراکین اسمبلی کی مدد سے یہاں منوہر لال کھٹر کی حکومت قائم ہو سکی ہے۔ زرعی اصلاحات کے نام سے لوک سبھا میں پاس کرائے گئے 3 بلوں کے خلاف کسانوں کے احتجاج اور BJP کی اتحادی شرومنی اکالی دل کی حکومت سے علیحدگی کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ بل کسانوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مجوزہ قوانین کسانوں کو آزادی اور حفاظتی ڈھال فراہم کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ تینوں بل لوک سبھا میں منظور کرانے کے بعد حکومت انہیں راجیہ سبھا میں منظور کرانے کی تیاری میں ہے۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت بہت جلد مذہبی تبدیلی کے خلاف ایک آرڈیننس وضع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ کام بڑھتے ہوئے لو جہاد ریاست کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، جہاں مسلمان مرد اپنے مذہبی شناخت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ہندو لڑکیوں کو راغب کر رہے ہیں، ایسا الزام ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اس قسم کے زیادہ سے زیادہ کیسز کانپور اور میرٹھ سے موصول ہوئے ہیں۔ ذرائع کے موجب RSS سربراہ موہن بھگوت جاریہ ہفتے لکھنؤ میں اپنے 2 روزہ دورے کے دوران مذہبی تبدیلی کے مسئلے کو اٹھایا تھا۔ مختلف ریاستوں میں مخالف تبدیلی قوانین کے ذریعے کسی بھی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی کوشش سے روکنے کا اختیار ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا کسی اور شخص کے ذریعے، جبری طور پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایسا کیا جائے یا پھر کوئی لالچ دیا جائے۔ اتر پردیش میں یہ قانون اسی نوعیت کا ہوگا جس کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے ایک پیچیدہ معاملے کے طریقہ کار کو ختم کیا جائے۔ یہ بات محکمہ قانون کے ایک عہدیدار نے بتائی۔ 3 کشمیری مزدوروں کو انکاؤنٹر میں ہلاک کیا گیا ہے، فوج نے کیا اعتراف۔
खाती सिपाहियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तानी फौज ने एतराफ़ किया है कि इसके सिपाहियों ने जुलाई में बागात में काम करने वाले 3 मजदूरों को हलाक किया और तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सिपाहियों ने इख्तियारात से तजावीज़ किया है। फौज ने कहा कि इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। इन हलाकतों के बाद फौज ने महलूक मजदूरों को दहशतगर्द करार दिया था। फ्रांस के मैगजीन चार्ली हेब्डो में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमानों का गम व गुस्सा जाहिर हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान फ्रांस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई शहरों में मुसलमानों ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अपना एहतजाज बुलंद किया है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुसलमानों ने जुमे के रोज एहतजाज मुनज़्ज़म किया और फ्रांस के मैगजीन चार्ली हेब्डो के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ चार्ली हेब्डो के पोस्टर्स और पुतले जलाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबाव कहें या दलित वोट बैंक खिसकने का डर या कुछ और, मगर योगी हुकूमत ने डिटेंशन सेंटर के क़याम मामले में यू टर्न ले लिया है। हुकूमत ने गाज़ियाबाद के नंदग्राम वाक़े SC/ST तलबा हॉस्टल को अब डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला ड्रॉप कर दिया है, यानी तर्क कर दिया है। यानी अब NCR गाज़ियाबाद में रियासत का पहला डिटेंशन सेंटर कायम नहीं होगा। ताहम अभी हुकूमत ने यह तय नहीं किया है कि अब किस मुकाम पर इस सेंटर की तामीर होगी या किस इमारत को इसकी शक्ल दी जाएगी। बीजेपी हुकूमत ने यह यू टर्न तब लिया है जब गुज़िश्ता दिनों ही इसने मरकज़ी वज़ारत दाखिला को एक ख़त भेजकर गाज़ियाबाद वाक़े हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर के तौर पर शुरू करने की इजाज़त मांगी थी। हुकूमत और इंतज़ामिया के इम्तियाजी रवैये से तंग आकर मरदमशुमारी 2021 में बड़ी तादाद में कबायली खुद को गैर हिंदू के तौर पर रजिस्टर्ड करा रहे हैं, जिससे VHP और RSS जैसी तंजीमों के होश उड़ गए हैं और कबायलियों के इस अमल से घबरा कर ईसाई मिशनरी और बाएं बाजू की जमातों पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कबायलियों को बहला फुसलाकर इन्हें हिंदू मजहब से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। जबकि कबायलियों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कबायलियों की हर जद्दोजहद को नक्सलियों से जोड़ दिया जाता है और हुकूमत और इंतज़ामिया के लोग इनके साथ नक्सलियों जैसा बर्ताव करते हैं, जबकि आदिवासी अलग अलग हैं। यही वजह है कि बालाघाट में 6 सितंबर को हुए पुलिस तसादुम में झमसंग नामी एक आदिवासी अपने साथी के साथ सरहद के करीब नदी में मछली मारने गया था। शाम को लौटते वक्त पुलिस को देखकर झमसंग और इसके साथी खौफ के सबब फरार होने लगे तो इन्हें पीछे से गोली मारी गई। इस वाक़े के बाद आदिवासी मुसलसिल एहतजाज और थाने का घेराव करके इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दुनिया भर के अरबपतियों से मदद करने की अपील की है ताकि भूख से मौत की दहलीज पर पहुंच चुके तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगियां बचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक से मुतालिक इदारे के सरबराह डेविड ने दुनिया भर के अरबपतियों से अपील की है कि वो तकरीबन 30 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए आगे आएँ, क्योंकि अगर इन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से मदद नहीं मिली तो ये मौत का शिकार हो सकते हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि 5 मजीद ममालिक इजराइल से मुआहदे के लिए संजीदगी से गौर कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोर ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के इजराइल से ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के बाद मजीद 5 ममालिक के मुआहदे का इम्कान जाहिर किया है। मार्क मेडोज ने दावा किया है कि मजीद 5 ममालिक इजराइल के साथ मुआहदे के लिए संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने फिलहाल इन ममालिक की शिनाख्त जाहिर करने से इनकार कर दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंटरमीडिएट के निसाब में 30% तक की तखफीफ का फैसला किया गया और इस सिलसिले में आइंदा 2 दिन में ख़तई इलामिया जारी किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा के बाद तालीमी साल में हुए तखफीफ और कारकर्द अय्याम में कमी के सबब माहिरीन तालीम की जानिब से पेश की गई तजावीज़ के मुताबिक तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से फैसला किया गया है और इस सिलसिले में हुकूमत को सिफारिशात रवाना कर दी गई है, जिसे मंजूरी दिए जाने के सिलसिले में जल्द अहकाम की इजराई अमल में लाई जाएगी। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर से तालीमी साल 2020-21 के आगाज़ का ऐलान किया गया था, जबकि आम तौर पर तालीमी साल का आगाज़ माह जून के दौरान हुआ करता था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र आने वाली तब्दीलियों के बाद तालीमी साल के आगाज़ में ताख़ीर हुई है। हैदराबाद के माधापुर में दुर्गम चेरुवू पर तामीर करदा असरी केबल ब्रिज को 19 सितंबर से यानी आज से अवाम के लिए खोल दिया जा रहा है। 5.5 किलोमीटर सड़क पर इस ब्रिज के साथ 1.5 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर भी तामीर किया गया है। दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज के आगाज़ के साथ ही मुसाफिरीन रोड नंबर 45 के फ्लाईओवर से गुजर सकते हैं और इस केबल ब्रिज और माइंड स्पेस फ्लाईओवर के जरिए मीनाक्षी क्रॉस रोड पहुंच सकते हैं। केबल ब्रिज 1 महीना पहले ही मुकम्मिल हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल और बरक़ी खमखमों के कामों के बाद इफ्तिताह में ताख़ीर हुई। ये ब्रिज अपनी खूबसूरती की वजह से शहरियों के लिए पसंदीदा मुकाम बनते जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 5000 शहरियों ने ब्रिज को देखा है।
ब्रिज पर से मोटर गाड़ियों के गुजरने की रफ्तार फी घंटा 30 किलोमीटर रखी गई है। इस ब्रिज की तामीर के लिए 52 केबल्स और 13 बुनियादें कायम की गई है। इस ब्रिज की लंबाई 735 मीटर है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात को 4 माह का अरसा बाकी है, लेकिन बरसर इख्तिदार टीआरएस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए ग्रेटर हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियों की तफसीलात अवाम तक पहुंचाई जा रही है। इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स, बीसी वोटर्स के रोजाना और महफूज वार्ड से मुतालिक तफसीलात को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैलाया जा रहा है। शहर में हालिया अरसे में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे, इनकी तफसीलात पेश की जा रही है। आमतौर पर इंतखाबी इलामिया की इजराई के बाद सियासी जमातें मुहिम का आगाज करती है, लेकिन टीआरएस ने ग्रेटर हैदराबाद में दूसरी मरतबा कामयाबी के मकसद से सोशल मीडिया के जरिए मुहिम शुरू कर दी है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी IAS ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुजव्विज़ा इंतखाबात के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया। GHMC के इंतखाबात फरवरी 2016 में मुनक्किद हुए थे और 5 साल मियाद 10 फरवरी 2021 को ख़त्म होगी। इलेक्शन कमिश्नर के जायजा इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। DS लोकेश कुमार IAS कमिश्नर GHMC, ज्योति बुद्धा प्रकाश IAS एडिशनल CEO GAD के अलावा GHMC और इलेक्शन कमीशन के सीनियर ओहदेदार इजलास में शरीक थे। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुजव्विज़ा इंतखाबात के बेहतर इनेकाद के चैलेंज को कबूल करें। जुनूब मगरबी मानसून के ज़ेर असर तेलंगाना में भारी बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद बारिश के सिलसिले में अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक हैदराबाद और दीगर अजला में मानसून के ज़ेर असर मौसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश का यह सिलसिला आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। शहर हैदराबाद की सड़कों पर गड्ढे पड़ जाना अब आम बात हो गई है, चाहे वो कोई VIP रोड हो या कोई बस्ती की रोड हो। जुबली हिल्स की वेंकटगिरी सड़क पर आज गड्ढा पड़ गया, जिससे गाड़ियों के आमदोरफ्त में बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा हुई और दूर दूर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने में अहम रोल अदा किया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हो रही बारिश से एक तरफ शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो रहे हैं, तो कई नशेबी इलाकों के घरों में पानी जमा हो गया। दूसरी तरफ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के वाक़ात भी पेश आ रहे हैं। आज जुबली हिल्स की सड़क पर गड्ढा पड़ गया तो 2 दिन कबल कुशाईगुड़े के AS राव नगर की सड़क पर भी गड्ढा पड़ गया था। पुलिस ने दोनों ही मुकामात पर बरवक्त पहुंचते हुए न सिर्फ ट्रैफिक मसाइल को हल करने में मदद की, बल्कि GHMC के ओहदेदारों को इसकी इत्तला देते हुए सड़कों की मरम्मत कराने में अहम रोल अदा किया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने आज मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हर पुलिस स्टेशन की ताकत और कमजोरियों की निशानदेही करें। कमिश्नर पुलिस ने नॉर्थ जोन के ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि PD एक्ट का निफाज इसी सूरत में किया जाए जब नुक्स अमन को खतरा हो। पुलिस ओहदेदारों को प्रोफेशनल होते हुए सूरत हाल के लिहाज से कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मशवरा भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हर ओहदेदार को जवाबदाह और शफाफ रहना चाहिए।